सब खैरियत से होंगे? Dear fellows, today we're going to discuss about auxiliary verbs. What is an auxiliary? How we do use the auxiliary verbs? So, dear friends, an auxiliary verb helps the main verb and is also called a helping verb. With auxiliary verb, we can write sentences in different tenses, moods and voices. Auxiliary verb क्या है? Auxiliary verb किसे कहते हैं? ये हमारा आज का टॉपिक है. इधर देखिएगा प्लीज. Auxiliary verb. Auxiliary verb. इन auxiliary verbs को sometime हम helping कहते हैं, यानी कि इन उर्दू आई में से that इमदादी अफ़आल, ऐसे फ़ेल, ऐसे अफ़आल जो मदद करे, जो मदद करे किसका? मेन वर्ब का. किस लिए मदद करे? जुमले को मुख्तलिफ टेंसेस में, मुख्तलिफ मूड्स में, मुख्तलिफ वॉइसेस में उसका इजहार करने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं. Dear friends, we use an auxiliary verb as a helping verb with the main verb. Sometimes we do put an auxiliary verb with the main verb just to show the time, just to show the tense, or in different voices. We may use the auxiliary verbs as an helping verb along with the main verb, and sometimes for different moods of verb. As in any kind of mood of verb, we may use an auxiliary verb with the main verb to show the mood of verb, that in which mood this verb has been used. इसके साथ साथ auxiliary verb मैंने आपको बता दिया, इसको हम helping verb कहते हैं. इसलिए helping verb इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे साथ main verb जो हमारा है उसके साथ ये मदद करते हैं. और मदद किस लिए करते हैं? ताकि उधर से हमें टेंस का सही पता चले, जमाने का, वक्त का पूरा पता चले कि किस जमाने में ये बात, किस जमाने में ये फेल, किस जमाने में ये फेल अंजाम हो रहा था, अंजाम हो गया था, अंजाम हो चुका था, या अंजाम हो जाएगा, हो पाएगा, वजूद में आएगा. तो इसीलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब, बतौर इमदादी फेल यूज करते हैं, ताकि हमें जमाने का पता बता दे, ताकि हम अच्छा वॉइसेस, हम इसको वॉइस के लिए भी यूज करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये एक्टिव वॉइस में है या ये पैसिव वॉइस में है. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी कि जुमले के वॉइस के इजहार के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स को मेन वर्ब के साथ यूज करते हैं. इसी के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स, हम वर्ब के जो मूड्स हैं, पिछले वीडियोस में हम मूड्स ऑफ वर्ब, इस पे हमने काफी लंबी वीडियो बनाकर उस पे कोशिश की थी कि हम वर्ड्स के मुख्तलिफ मूड्स जो है उनको हम पहचान सके, उनको हम जान सके. तो उन मूड्स के इजहार के लिए कि किस मूड में ये वर्ब यूज हुआ, उसी के लिए भी हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. Okay, along with this, my dear friends, what are those auxiliary verbs which we use in different tenses, which we use in different moods, and which we use in different voices, active or passive voice? So those auxiliary verbs are here. Look at here. Your attention is needed. You please, concentration is must. You should give me your full concentration. So look at here. Is, am, are, was, were, will, be, यानी will be, shall be, has, have, had, will have, shall have, has been, had been, have been, shall have been, will have been. ये ऐसे auxiliaries हैं जो हम मुख्तलिफ टेंसेस में, मुख्तलिफ औकात के लिए, मुख्तलिफ जमानों के लिए यूज करते हैं. इसलिए आप इधर देखिए ना, यहाँ पर हैव के साथ बीन, या शल के साथ है, या शल के साथ हैव बीन, या हैव के साथ वेल, या वेल के साथ हैव और साथ में बीन. ये जमानों के, काम के अंदाज के बारे में और जमाने के बारे में बताने के लिए कि किस वक्त, किस टेंस में, किस जमाने में काम किस अंदाज में था, हो रहा था, जारी था, होता था, मामूल के मुताबिक होता था, या हो चुका था, या हो जाएगा, या हो रहा होगा,
आने वाले जमाने में, फ्यूचर के लिए. So इसीलिए ये all these auxiliaries, look at here once again, I'm repeating, look at is, am, are, was, were, will be, shall be, has, have, had, will have, shall have, has been, had been, have been, shall have been, and will have been. All these are auxiliaries which we do use to show the voice of the verb, to show the mood of the verb, and to show the tense of the verb or the time of the verb. So now look at these examples. In different examples, I have tried my best to use all these auxiliaries in different sentences. So look at these are some model sentences. इन sentences पे आप गौर कर दीजिएगा. इनमें मैंने ये सारे auxiliary verbs यूज किए हैं main verb के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह मालूम हो जाए कि इस जुमले में main verb क्या है और इसके साथ auxiliary क्या है, और इस auxiliary ने हमें क्या बताया, कोई voice बताई, कोई mood बताई, या कोई tense बताया, तो कौन सा जमाना बताया. लिहाजा गौर कर दीजिएगा. Please look at here. Number 1, model sentence number 1. Aiza is preparing dinner for us. Aiza is preparing dinner for us. Aiza हमारे लिए डिनर तैयार कर रही है. is preparing dinner for us, हमारे लिए डिनर तैयार कर रही है. यहाँ पे देखिएगा ये is हमने यूज किया है और इस is को बतौर auxiliary verb यूज किया है, बतौर helping verb यूज किया है. अब इस is ने किसके साथ हेल्प किया, इसने prepare के साथ हेल्प किया. ये जो prepare है हमारा, इसके साथ is ने हेल्प किया, इसने मदद किया किस चीज के बताने में, जमाने बताने में और काम की कंडीशन के बारे में, कि काम किस कंडीशन में, तो काम जारी है. आयजा डिनर तैयार कर रही है. आयजा ने डिनर तैयार नहीं किया अभी वो जारी है काम, वो लगी हुई है, डिनर तैयार कर रही है. डिनर तैयार करने में मसरूफ है. तो यहाँ पर इस ने हमें ये जो है ये प्रिपेयरिंग, ये हमारे साथ मेन वर्ब है. इस मेन वर्ब को इस लगाकर, से पहले इस लगाकर बतौर ऑक्सिलरी वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब ने एक काम की नौइयत बता दी कि काम जारी है, और दूसरा हमें जमाना भी बताया कि अभी मौजूदा जमाने में, यानी हाल में ये काम हो रहा है. आइजा हाल में अभी ये काम कर रही है. ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. आई एम वाचिंग टीवी एट दिस टाइम, बाय द टाइम, यानी इस वक्त मैं एक काम कर रहा हूं. आई एम वाचिंग टीवी देख रहा हूं. तो ये मेरा जो टीवी का देखना है ये जारी है. तो यहाँ पर इस आर वी आर ओके, आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टीवी वॉच कर रहा हूं. तो यहाँ पर वॉच हमारे साथ मेन वर्ब है, इसके साथ एम बतौर ऑक्सिलरी वर्ब लगाया गया है. इस ऑक्सिलरी वर्ब ने हमें टेंस बताया, हमें टाइम बताया कि मौजूदा वक्त है, और मौजूदा वक्त में काम की नौइयत भी बता दी कि काम अभी जारी है, यानी टीवी देखना मैंने बंद नहीं किया, टीवी अब भी मैं देख रहा हूं, मेरा देखना टीवी का अभी जारी है. वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. ये सारा एक ही टेंस है, बस मेरा मकसद था एस एम आर को यूज करना, क्योंकि यहाँ पर हमने बतौर ऑक्सिलरी एस एम आर हर एक ऑक्सिलरी को एक सेंटेंस में यूज करने की कोशिश की गई है. लुक एट हियर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं. हमारा जो काम है इस वक्त मौजूद वक्त में है, हम कौन सा काम करें, क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट का ये खेलना अभी जारी है, ये काम की नौइयत. तो काम का नौइयत और जमाना हमें आर ने बता दिया. आर बतौर ऑक्सिलरी इस सेंटेंस में यूज हो गया है. They were not listening the news on TV. They were not listening the news on TV. यहाँ पर देखिएगा हमारे साथ जो वर्ड है, लफ्ज वर्ड, ये ऑक्सिलरी बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ, और इस ऑक्सिलरी ने लिसनिंग के साथ मदद किया. अब काम की नौइयत क्या है, यानी नहीं. यहाँ पर इससे पहले नट आ गया, तो नट से मतलब ये हुआ कि सुन नहीं रहे थे. सो वर्ड ने हमें एक चीज ये बताई कि ये पिछले जमाने की बात हो रही है, कि आज से कुछ देर पहले, या कुछ वक्त पहले, या कुछ दिन पहले, बहरहाल पहले की, यानी माजी बड़ीद हो या माजी करीब, माजी की बात हो रही है. They were not listening the news on TV. वो न्यूज को, खबरों को टीवी पे नहीं सुन रहे थे. तो वर्ड ने हमें दो चीजें बता दी. एक ये कि दे, यानी वो जमा, प्रोनाउन यूज हुआ जमा का, वो लोग ज्यादा थे और वो नहीं सुन रहे थे, क्या न्यूज को नहीं सुन रहे थे टीवी पे.
تو یہاں پر ور نے ہمیں پچھلے زمانے کے بارے میں بتا دیا اور ساتھ میں کام کے جاری رہنے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ ان کا لسنا جو تھا وہ جاری نہیں تھا. تو یہ ہمیں کام کے جاری رہنے کے بارے میں بھی بتا دیا اور پچھلے زمانے کے بارے میں بھی بتا دیا. کام کا کنڈیشن لسننگ ہے بلکہ ان سینٹنس میں ناٹ لسننگ ہے کہ وہ نہیں سن رہے تھے. اوکے, he was not spiting on the floor, وہ فلور پہ وہ فرش پہ اسپائٹنگ یعنی تھوکتا نہیں تھا, یعنی وہ فرش پہ نہیں تھوک رہا تھا. لہذا اس کا تھوکنا جو ہے اسپائٹنگ, اسپائٹنگ ہمارے ساتھ مین ورب ہے. اس مین ورب کے ساتھ was بطور ایگزیلری یوز ہوا. was نے ہمیں دو چیزیں بتا دی, ایک یہ کہ کام کی نوعیت بتا دی, کام کا زمانہ بتا دیا, اور دوسرا یہ کہ یہاں پر یہ was ہم جو یوز کرتے ہیں یہ ہم سنگولر پروناؤن یا سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ یوز کرتے ہیں. سو was ایگزیلری اور اسپائٹنگ مین ورب. سو مین ورب کے ساتھ was نے مدد کر دیا اور مدد کر کے ہمیں زمانے کا بتا دیا کہ کس ٹائم میں یہ کام جو اسپائٹنگ کا کام ہے جو نہیں ہو رہا تھا وہ نہیں کر رہا تھا, وہ ہمیں بتا دیا اس کا زمانہ اور ساتھ میں اس کی کنڈیشن بھی کہ جاری ہونا یعنی وہ مسلسل ٹوٹتا نہیں تھا. I shall read this book. یہ آنے والے زمانے کی بات ہو گئی, مستقبل کی طرف بات چلے گئی. I shall read this book. میں یہ کتاب پڑھوں گا. تو مستقبل کیا ہے, مستقبل کو کس نے دیکھا, کل کو کس نے دیکھا. فیوچر سے دراصل ہمارا مطلب ہوتا ہے انٹینشن. یہ سارا ارادے کا, یہ پلاننگ کا, ارادے کے لیے ہم فیوچر ٹینس کو یوز کرتے ہیں, پلاننگ کے لیے فیوچر ٹینس کو یوز کرتے ہیں. سو I shall read this book. میں یہ کتاب پڑھوں گا یعنی ابھی نہیں پڑھ رہا, میں پڑھوں گا. تو یہاں پر دیکھیے نا, shall بطور ایگزیلری یوز ہوا. یہ پچھلے قاعدے کے مطابق shall کو آئی وی کے ساتھ ہم یوز کرتے تھے اور will کو باقی ماندہ تمام پروناؤنس کے ساتھ یوز کیا کرتے تھے. اور پھر سم ٹائم ایسا کرتے کہ جب کسی بات پہ ہم زور دیتے تھے کہ سٹریس کرتے تھے, اس وقت ہم آئی وی کو چینج کر کے اس کے ساتھ will لگا دیتے اور باقی پروناؤنس میں سے اگر کسی بات پر ہم سٹریس کرتے تو ہم پھر will کی جگہ shall استعمال کرتے. مگر آج کل امریکن انگلش میں یہ ہوا کہ تقریباً will سب پروناؤنس کے ساتھ will یوز ہوتا ہے. بہرحال چونکہ ہمارے ساتھ shall ایک ایگزیلری تو ہے, یہ تو ایک حقیقت ایک بنیادی ایگزیلری ہے, پہلے سے یوز ہوتی آ رہی ہے, لہذا میں نے بھی یوز کر دیا. I shall read this book. میں یہ کتاب پڑھوں گا یعنی shall نے امدادی فعل کے طور پر read کے ساتھ مدد کیا. read مین ورب ہے, shall ہمارے ساتھ ایگزیلری ورب ہے. shall نے ہمیں زمانے کا بتا دیا کہ انٹینشن کی بات ہو رہی ہے, آنے والے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو read کا یعنی کام جو ہے, یہ read یعنی پڑھائی کا جو کام ہے, یہ جو کتاب کا مطالعہ کرے گا, یہ مطالعہ فیوچر میں کرے گا, یہ ہمیں shall نے بتا دیا. ساتھ میں ریڈ کے ساتھ shall نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وہ یہ مطالعہ کرے گا یعنی انڈیپینڈنٹ مطلب مطلق کرے گا, سمجھ رہے ہو نا, حال میں, حال مطلق نہیں کرے گا. he will go to لاہور, اس کا ارادہ ہے لاہور جانے کا تو لاہور جائے گا. یہاں پر بھی ارادہ ہے, will نے ہمیں ارادہ بتا دیا, انٹینشن بتا دیا اور فیوچر کے بارے میں بتا دیا, کل جائے گا, پرسوں جائے گا, کچھ دیر بعد جائے گا, لیکن فیوچر میں چاہے مستقبل قریب ہو یا مستقبل غریب ہو, وہ تو اس پہ منحصر ہے that if it is in near future or if it is in far future. So we shall be helping the poor. We shall be helping the poor. ایک بات آپ کو یاد دلا دوں, ادھر میں نے آپ کو بتا دیا تھا the کے استعمال کے بارے میں, ہاں اس دن اس کلاس میں, اس ویڈیو میں, کہ جب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم the کو لگا دیتے ہیں تو اس the سے کسی ناؤن سے پہلے لگا دیتے ہیں تو اس ناؤن the لگانے سے وہ ناؤن پورا کلاس بن جاتا ہے, اس کا پورا گروپ, اس ناؤن کا پورا نوعیت, اس کا پورا کائنڈ, وہ جس گروپ سے وہ سارا گروپ اس سے مراد ہوتا ہے. تو پور اگر ہم the کے بغیر فور یوز کریں تو ایک غریب مراد ہوگا, اگر ہم پور سے پہلے the یوز کریں گے تو اس سے مطلب غربا. میں نے آپ کو مثال دی تھی اگر آپ کو یاد ہو. So we shall be helping the poor. ہم غربا کی, یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم غریب کی مدد کر رہے ہوں گے, ہم غریب کی مدد کر رہے نہیں, ہم غربا کی مدد کر رہے ہوں گے. تمام غریب جو ہے, سارے غریب جو ہے کسی علاقے میں, یا اگر ہم ادھر کی بات کر رہے تو ہمارے ارد گرد و نواح میں جتنے بھی ہمارے غریب ہیں ہم ان کی مدد کر رہے ہوں گے. یعنی مستقبل میں یہ کام فلانا دن پہ فلانا, یا ہم جب جائیں گے یہ وقت جب آئے گا تو ہم اس کام میں مصروف ہوں گے, یعنی ہم یہ کام جاری رکھے ہوئے ہوں گے. ارادہ ہے کام کے جاری رکھنے کا مستقبل میں. سو یہاں پر shall نے
اور ساتھ میں بی نے شل کے ساتھ بی لگا کر helping the poor. So help ہمارے ساتھ کیا ہوا, help ہمارے ساتھ main word اور shall بھی ہمارے ساتھ auxiliary کے طور پر یوز ہوئے. And the baby will be weeping. جب ہم گھر جائیں گے so the baby will be weeping. کوئی مطلب یہ کیا ہے, ایک امید کی طرف بات ہے, امید فیوچر کا, فیوچر میں ایک کام کی جاری رہنے کا, کہ جب ہم جائیں گے so the baby will be weeping. اس کا رونا جاری ہوگا, وہ روتا رہا ہوگا. Okay, now look at these examples. He has gone there during the summer. وہ سمر کے دوران, یعنی کہ وہ سمر کے دوران, موسم گرما کے دوران وہ وہاں جا چکا تھا. He has gone there. وہ وہاں گیا, وہ تھا نہیں, sorry. He has gone there during the summer. وہ موسم گرما میں وہاں جا چکا ہے یا وہ گیا ہے. So یہاں پر has gone نے gone ہمارے ساتھ اس سینٹنس میں, gone ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ مین ورب ہے, یہ مین ورب ہے. has ہمارے ساتھ بطور ایگزیلری یوز ہوا. اس has نے ہمیں دو چیزیں بتا دی, ایک اس کے ٹائم کا بتا دیا, ایک اس کام کی کمپلیشن کا بھی بتا دیا کہ کام مکمل ہو چکا ہے, یعنی وہ سمر میں وہاں جا چکا ہے یعنی گیا ہے, اس کا جانا ادھر مکمل ہو چکا ہے, وہ کام ہو گیا ہے. guests have left. So guests have left. جب guests have left, یہاں پر دیکھیں left ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ main verb ہے, have کو بطور auxiliary یوز کیا گیا. guests have left. تو ادھر have جو ہمارے ساتھ ہے یہ auxiliary کی طور پر یوز ہوا, left main verb یوز ہوا. یہاں پر have نے ہمیں ایک مہمانوں کی کنڈیشن کا بتا دیا کہ مہمان چلے گئے ہیں, رخصت ہو چکے ہیں. دوسرا ہمیں زمانے کا بھی بتا دیا کہ ابھی رخصت ہو چکے ہیں, چلے گئے, مطلب موجود حال میں رخصت ہو چکے. رشید hadn't heard this good news. رشید نے یہ اچھی خبر نہیں سن چکی تھی. پچھلے زمانے کی طرف بات چلی گئی. پچھلے زمانے میں یعنی ماضی میں ایک کام کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے, تو ایک ماضی کی طرف ہمیں بتا دیا اس ہیڈ نے, جو بطور ایگزیلری ہم نے یوز کی ہے. ہیڈ نے ہمیں بتا دیا اس کام کے ماضی میں ہونے کے بارے میں, اور دوسرا ہیڈ نے ہمیں بتا دیا اس کام کی کمپلیشن کے بارے میں کہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہاں پر یہ ہمارے ساتھ مین ورب ہے. اس مین ورب کے ساتھ ہیڈ نے مدد کیا زمانہ بتانے میں, ہیڈ نے مدد کیا کام کی کمپلیشن کے بارے میں. So look at the next sentence. We shall have taken tea. We shall have taken tea. پھر مستقبل میں ایک کام کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے کہ فلانا وقت جب آئے گا, فلانا بندہ جب آپ پہنچے گا, so we shall have taken the tea. تو ہم چائے پی چکے ہوں گے, یعنی مستقبل میں ہم نے چائے کا پینا مکمل کیا ہوگا جب وہ آ جائے. فار ایگزامپل so یہ مستقبل میں کسی کام کی تکمیل کے بارے میں. سو یہاں پر shall have بطور auxiliary یوز ہوا, اور taken ہمارے ساتھ بطور main verb ہم نے یوز کر دیا. the train will have arrived. the train will have arrived. ٹرین کے آنے کے بارے میں probability یعنی احتمال, possibility یعنی فیوچر میں, فیوچر کی بات تو فیوچر کی ہے کہ the train will have arrived, یعنی جب ہم ادھر پہنچے یا وہ جب پہنچے گا تو the train will have arrived. ٹرین آ پہنچی ہوگی. اوکے, سو یہاں پر will have بطور auxiliary اور arrived ہمارے ساتھ بطور main verb ہم نے یوز کر دیا. He has been teaching here for 2 years. He has been وہ یہاں 2 سالوں سے ٹیچنگ کرتا رہا ہے. تو 2 سالوں سے, اور یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہے, he has been. یہاں پر has been بطور auxiliary ہم نے یوز کیا اس سینٹنس میں. teaching بطور main verb یوز ہوا. he has been teaching here for 2 years. we have been reading this book for an hour. یہ دونوں ایک ہی طرح کی سینٹنسز ہیں, بس ادھر ہی ہے اور ادھر we ہے. یہاں پر has been یوز ہوا, یہاں پر چونکہ plural pronoun ہے تو have استعمال کیا گیا. we have been driving maths since noon. بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نون سے میتھس جو ہے اس کا ڈرائیونگ کرتے ہیں, اس کے نقشے کھینچتے رہے تھے. سو وی ہیڈ بین یعنی یہ پچھلے زمانے میں فیوچر کی پاسٹ کی طرف بات چلی گئی, اور پاسٹ میں کام کی
काम के कुछ हिस्से के मुकम्मल होने और कुछ हिस्से के जारी रहने के बारे में बात हो रही है कि वो ड्राइविंग नून से वो ड्राइविंग करते रहे थे उसका कुछ हिस्सा किया था, कुछ हिस्सा बाकी था, तो करते रहे थे, जारी था. We shall have been waiting for you since yesterday. Same is the case as like the previous sentence. Children will have been playing in the garden since long. यहाँ पर will have been, यहाँ पर shall have been. So shall have been as an auxiliary and waiting as a main verb. Here will have been as an auxiliary and playing as a main verb. So dear friends, ये तो आज था about auxiliaries कि auxiliaries क्या होते हैं और auxiliaries को हम किस मकसद के लिए यूज करते हैं और कहाँ हम auxiliary यूज कर सकते हैं. इन बहुत सारे मिसालों में आपको एक एक auxiliary के बारे में इंशाल्लाह मालूम हुआ होगा. कोशिश कीजिए कि आप जान लें कि auxiliary और main verb में कुछ फर्क होता है और वो फर्क इन सारी जुमलों में वाज़ेह है, वो नुमाया है. अब देखिए हमारे साथ कुछ वर्ब्स हैं, उन वर्ब्स को समटाइम हम मेन वर्ब में भी यूज कर सकते हैं और उनको हम बतौर ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर सकते हैं. जरा इधर देखिएगा, ये इंतहाई अहम टेबल है, इस टेबल को अपने साथ नोट कर दीजिएगा. इससे आपको सब कुछ मालूम होता जाएगा कि हम बतौर ऑक्सिलरी एक वर्ब को कैसे यूज कर सकते हैं और बतौर मेन वर्ब हम एक वर्ब को कैसे यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर वो डिफरेंस आएगा. यहाँ पर इन सारी जुमलों में तो हमने सिर्फ ऑक्सिलरी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब की बात की कि ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज होता है मेन वर्ब के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब. लेकिन यहां पर हम ये बात कर रहे हैं बिल्कुल उससे मुख्तलिफ कि यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जो बतौर ऑक्सिलरी भी यूज हुए और इसी चार्ट में बतौर मेन वर्ब भी यूज हुए. यानी वर्ब इज द सेम बट समटाइम वी यूज इट एज मेन वर्ब एंड समटाइम वी यूज इट एज एन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब विद द मेन वर्ब. सो हियर लुक एट बी, डू, हैव एंड नीड. ये हमारे साथ 4 ऑक्सिलरीज है जो मेन वर्ब्स भी है और जो कि हेल्पिंग वर्ब्स भी है. एक जुमले में हम इनको बतौर मेन वर्ब यूज करते हैं और दूसरे जुमले में हम इनको बतौर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं. और वो कौन से हैं दोबारा सुनिएगा. ये कुछ वर्ब्स है यानी बी, डू, हैव एंड नीड. एज मेन एंड एज ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं इनको. तो कैसे करते हैं, लुक एट हियर प्लीज. एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, इन सारे ये जो चार्ट है इधर, यहाँ पर हमने इनको बतौर ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया और ये इस राइट साइड पे जो चार्ट है इसको हमने बतौर मेन वर्ब यूज किया. अब फर्क आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगा कि एक जुमले में ये हमें ऐसा काम करते दिखाई देंगे कि वो मेन वर्ब का काम करते होंगे और दूसरी जुमले में हम ये बतौर ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हुए दिखाई देंगे. सो लुक एट हियर, पहले तो बी और बी वर्ब बी का तो मैंने आपको बता दिया था ना कि वर्ब बी में हमारे साथ क्या है, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन एंड बीइंग. ओके, सो यहां पर कुछ इसमें से बी में से कुछ यानी कि यहां पर मैंने यूज किए इज, वाज और वर. आप देखिए इधर इस सेंटेंस में बी को हमने यूज किया यानी इज, एम, आर, वाज, वर को यूज किया. शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, शी इज प्रिपेयरिंग डिनर. यहां पर भी हमने एक जुमला यूज किया था, जरा इधर देखिए प्लीज, योर अटेंशन शुड बी हियर. आयशा इज प्रिपेयरिंग डिनर फॉर अस या आयशा इज प्रिपेयरिंग डिनर. अब इस जुमले में उस जुमले में देखिए दोनों एक ही तरह के हैं. वहां पर ऑक्सिलरी बतौर इज जो है बतौर ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ. इसी तरह शी इज प्रिपेयरिंग डिनर, यहां पर भी यहाँ पर जो इज है, इज ये हमारे साथ बी वर्ब है. तो ये बी वर्ब हमने यूज किया बतौर क्या, बतौर ऑक्सिलरी. बतौर ऑक्सिलरी हमने यूज किया, बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज किया. क्यों किया ऐसा, क्योंकि प्रिपेयरिंग जो है, ये जो वर्ड प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग हमारे साथ मेन वर्ब है. ये मेन वर्ब है, यहाँ पर प्रिपेयरिंग मेन वर्ब का काम करता है. ये एक मेन काम है, एक अहम जुज है, ये एक अहम फि'ल है, ये मुकम्मल एक्शन है. तो इस एक्शन के साथ इज ने बतौर ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मदद किया यानी मदद किया और मदद करते हुए इस इज ने हमें इस काम की नोयत के बारे में बताया कि काम अभी जारी है. दूसरा, इस इज ने यानी बी ने और बी जो इज है इसने हमें ये भी बता दिया कि काम अभी जारी है, ये उसका नोयत, और ये भी बता दिया कि ये काम मौजूदा जमाने में है. सो ये इज बतौर हेल्पिंग वर्ब टू शो अस द कंडीशन ऑफ द वर्ब and to tell us about the time. अब देखिए इस को यहाँ पर तो ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हुआ, लेकिन दूसरी साइड पे देखिएगा
यहाँ दूसरी साइड में आयजा इज फ्रॉम कराची, यहाँ पर इज से हमारा मतलब है। सो लुक एट हियर, आयजा इज फ्रॉम कराची, आयजा कराची से है, आयजा का ताल्लुक कराची से है, आयजा कराची में रहती है, आयजा कराची से है। तो यहाँ पर इज को बतौर मेन वर्ब यूज किया क्योंकि इसके साथ कोई और वर्ड इस जुमले में मौजूद नहीं है जिसको ये सपोर्ट करे या जिसका ये मदद करे। तो जब कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है जिसके साथ हम बतौर हेल्पिंग वर्ब इसको यूज करें, लेकिन ये खुद यहाँ पर अकेला है, लिहाजा इस जो इस जुमले में है ये बतौर मेन वर्ब यूज हुआ, खुद मेन वर्ब हो गया। और इसी जुमले में ये इज बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ। यही फर्क है जो समटाइम हम इसको बतौर मेन वर्ब यूज करते हैं और समटाइम इसको बतौर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस लुक एट, ही वाज रिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, वो लाहौर चला गया। अच्छा जी, तो कोई उनके वेलकम के लिए आया हुआ था, निकला हुआ था कोई? सो यस सर, ही वाज रिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने उसको वेलकम किया, उसके दोस्त उसको वेलकम करने के लिए निकले हुए थे, उनको रिसीव कर दिया उन्होंने। ओके, उनको खुशामदीद करने के लिए उसके दोस्त आए हुए थे एयरपोर्ट पे। ही वाज रिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स। अब अगर हम इधर देख लें तो ये रिसीव्ड हमारे साथ जो है रिसीव्ड, ये रिसीव्ड हमारे साथ जो है ये हमारे साथ मेन वर्ब है, और यहाँ पर जो वाज है ये वाज हमारे साथ हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इस वाज ने ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है, बट हियर इन दिस सेंटेंस ये ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब है, क्योंकि इस ऑक्सिलरी वर्ब ने रिसीव्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम किया, जमाने का बता दिया और काम के जारी होने का बता दिया कि काम के मुकम्मल होने का बता दिया, और यहाँ पर इसने एक और भी काम कर दिया, वॉइस का भी बता दिया। जैसे हमने इधर ये लिखा है ना कि आर वॉइस, सो यहाँ पर वॉइस के भी बता दिया। he was received by his friends, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बात चली गई। तो was बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ, was ने हमें जुमले के वॉइस के बारे में बता दिया, was ने हमें जुमले के काम की तकमील के बारे में यानी कंडीशन के बारे में बता दिया, और was ने यहाँ पर मेन वर्ब के साथ मदद कर दिया। अब इधर से देखिए, वाज वर्ब एक ही होते हैं, वर्ब जमा के लिए और वाज सिंगल के लिए। यहाँ पर तो पैसिव वॉइस में है, तो they were here, वो यहाँ थे, वो यहाँ थे। हम किसी को कह रहे हैं ना, कोई हमसे पूछ रहा था यार वो बच्चे जो थे वो कल किधर थे, हम उनको ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिल पा रहे थे, जी वो यहाँ थे। तो यहाँ पर थे मौजूदगी के लिए, पास्ट में किसी मौजूदगी के लिए, for the presence in the past, here word has been used and there is no other verb in this sentence, that's why word is a main verb in this sentence. Okay, look at here, they were studying all the night, सारी रात वो मुतालिया कर रहे थे। पिछली रात की बात हो रही है कि पिछली रात सारी रात वो मुतालिया कर रहे थे। तो आप देखिए यहाँ पर वर्ब ने मदद किया स्टडिंग का, स्टडिंग हमारे साथ मेन वर्ब है, वर्ब हमारे साथ ऑक्सिलरी है और ये बी वर्ब है। तो इस ऑक्सिलरी ने स्टडी के साथ मदद करके इसके जारी रहने का हमें बता दिया, इसके जमाने का बता दिया, इसके टाइम का बता दिया और काम की कंडीशन का बता दिया। I am a student, यहाँ पर m को देखिए, I am a student, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो प्रेजेंस का बता दिया, हालत का बता दिया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, यानी इस वक्त मैं एक स्टूडेंट हूँ। ओके, सो मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो एम यहाँ पर बतौर क्या यूज हुआ, मेन वर्ब यूज हुआ। अब डू को देखिए, डू को हम यूज करते हैं, समटाइम वी यूज डू एज ऑक्सिलरी एंड समटाइम वी यूज डू एज अ मेन वर्ब। सो in these some examples in these sentences, now you will come to understand the difference of do as an auxiliary and as main verb. Look at here, I don't know the truth, यहाँ पर do और no यूज हुआ। I don't know एक वर्ड ऑलरेडी मौजूद है, मेन वर्ब के तौर पर नो मौजूद है। डू बतौर क्या हुआ, बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ। I don't know, I do know the truth, I do know the truth या I don't know the truth। एक में नफी है, एक में मस्बत है, एक में इकरार है और दूसरे में इनकार है। So look at here, do बतौर ऑक्सिलरी, no बतौर मेन वर्ब। She did her homework, इधर देखिए ना, यहाँ इस जुमले में पूरे जुमले में कोई दूसरा हमारे साथ मेन वर्ब नहीं है, लिहाजा did यहाँ बतौर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ। Do you want another one? हम बिस्किट खा रहे हैं, चाय बिस्किट खा रहे हैं, तो हमने एक से कहा do you want another one, दूसरा तुम्हें चाहिए, या कोई और चीज जो हम कर रहे हैं, do you want another one, क्या तुम्हें कोई दूसरा चाहिए। So do you want another one, यहाँ पर
हमारे साथ डू सवाल के तौर पर यूज हुआ, डू बतौर ऑक्सिलरी यूज हुई। ऑक्सिलरी में जुमले के शुरू में ऑक्सिलरी लगाकर हम क्वेश्चन बना देते हैं, इंटरोगेटिव कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए वी आर डूइंग आवर होमवर्क, सो डूइंग, वी आर डूइंग आवर होमवर्क। इधर देखिए यहाँ पर आर इससे पहले इस्तेमाल किया गया, जब आर इससे पहले इस्तेमाल हुआ तो डूइंग, वहां पर डूइंग यूज हुआ, वी आर डूइंग आवर होमवर्क, तो उधर डूइंग बतौर मेन वर्ब यूज हुआ, यहाँ पर डू बतौर ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ। वी डू एग्री with you, we do agree with you, हम आपके साथ इस बात पे रजामंद है, इस बात पे हम आपके साथ इत्तेफाक करते हैं। we do agree with you, यहाँ पर do बतौर क्या हुआ, बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ, क्योंकि यहाँ इसके साथ एक दूसरा भी मेन वर्ब मौजूद है। we have done the shopping, we have done the shopping, we have shopping, उधर shopping के साथ ing लगाकर एक काम को नाउन बनाया गया। जब वो नाउन हो गया तो इधर डन वाहिद मतलब सिर्फ वर्ब रह गया, तो यहाँ पर ये बतौर मेन वर्ब काम किया इसने। अब देखिए हैव को यूज करते हैं। आई हैव ईटन द मील, यहाँ ईटन मेन वर्ब, हैव इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब। आई हैव अ बाइक, यहाँ पर हैव एक बाइक होने के लिए, सो यहाँ पर हैव बतौर मेन वर्ब। We have won the match, मेन वर्ब वही होता है जो जुमले में असल काम के बारे में बता दे, जो जुमले में एक जो असल काम हो उसको मेन वर्ब कहते हैं। तो इधर देखिए मेन वर्ब ये इसलिए है कि बाइक का होना असल काम है और वो होना हैव ने इजहार कर दिया, जाहिर कर दिया, लिहाजा हैव यहाँ पर हमारे साथ मेन वर्ब है और यहाँ पर हैव, यहाँ पर असल काम ईटन, ईट जो है ये असल काम है, वो ईट मेन वर्ब दूसरा इस्तेमाल किया गया, हैव बतौर ऑक्सिलरी हो गई। ओके, वी हैव वोन द मैच, हमने मैच जीत, वी हैव वोन जीत चुके हैं या जीता है, तो यहाँ पर हैव बतौर ऑक्सिलरी, वोन बतौर मेन वर्ब। इधर देखिए वी हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, वी हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क, तो यहाँ पर कोई दूसरा वर्ब नहीं है, सिर्फ हैव ने बहुत ज्यादा काम, कसीर काम के होने का हमें बता दिया, लिहाजा हैव जो है ये मेन वर्ब है, उसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी है। आई हैव बीन फॉलोइंग यू, यहाँ पर हैव क्या है, हैव बीन लगाया गया, फॉलोइंग भी साथ में आ गई, तो एक मेन वर्ब फॉलो, तो दूसरा हैव भी इसके साथ क्या हुआ, बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ। हर फादर विल हैव अ गुड जॉब, विल हैव हो जाएगा, वो रिसीव करेगा, उसको इंशाल्लाह मिलेगा अच्छी जॉब। सो उसके पास तो नीड की हम बात करें तो नीड में देखिए यहाँ इन जुमलों में यहाँ पर नीड एज ऑक्सिलरी एंड इधर नीड एज अ मेन वर्ब। सो लुक एट she needs not hurry, she needs not hurry। Okay, so look at here, she needs not hurry, और इधर देखिए he needs to come with us। अब देखिए she need not hurry, need यहाँ पर बतौर ऑक्सिलरी यूज हुआ, जिसने एक इमदादी फेल के तौर पर यूज हुआ, और यहाँ पर ये हरी जो हमारे साथ है, she needs not hurry, उसको जल्दी नहीं करने की जरूरत नहीं है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब इधर देखिए he needs to come with us, अब need के साथ देखिए इधर हमने इस का इजाफा कर दिया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस में से इस वर्ब के साथ इस या इस का इजाफा कर दिया। अब इधर हमने नीड के साथ इसका इजाफा कर दिया, इसलिए कर दिया कि ये इधर हमारे साथ मेन वर्ब है। सो ही नीड्स टू कम विद अस, कम यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ पर कम यूज हुआ है, लेकिन कम यहाँ पर बतौर वर्ब यूज नहीं हुआ, नीड्स यहाँ पर बतौर मेन वर्ब यूज हुआ, साथ में आना उसको चाहिए, तो लेकिन देखिए इधर ही नीड लुक एट द फैक्ट, he needs look at the fact, so यहाँ पर need को देखिए, यहाँ पर look भी यूज है और यहाँ पर need भी यूज है, so he need look at the fact, so look को देखिए, look के साथ need का इस्तेमाल होना, need बतौर auxiliary। they do not need to worry, यहाँ पर देखिए do इस्तेमाल हुआ, not इस्तेमाल हुआ, लिहाजा need भी साथ में इस्तेमाल किया गया, तो need जो है ये हमारे साथ मेन वर्ब है उसी सेंस में। he needs no more reply and she needs a new watch। वीडियो लंबी होती जा रही है, आप भी बोर होते जाएंगे और साथ में इसको फिर अपलोड करना भी बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। anyway I am very hopeful कि आप लोग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके ज़हन में आ गया होगा इन चीजों के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है और साथ में ये कि वर्ब बी, डू, हैव एंड नीड हम कैसे यूज करेंगे और इनमें फर्क क्या है बतौर
ऑक्सिलरी बतौर मेन वर्ब. अगर वीडियो आपको पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और इसको शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा पहुंचे. और अगर आप नहीं है इधर हमारे साथ चैनल में तो लिहाजा इसको प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि इसको सब्सक्राइब कर दें. सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके, आपको बर वक्त आपको मिल सके. आज के लिए बस इतना कुछ. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी.